Hello guys, welcome to Keet Kaksha और ये है कक्षा गपशप and this is the episode 10 and today we have with us Mr. Rajneesh Jha. So भैया 2019 के पास आउट है and he is presently working in ZS as an data scientist. So hello भैया, thanks for joining us. Hello, listeners, and hello, Avinav and Animesh. Thank you guys for inviting me here, and I think that you guys are really doing a great work. I've seen some of the content, and they are really awesome, and I hope that it is gonna help the juniors in the kit and around the globe. So, thank you for inviting me. Thank you भैया. तो ओके फिर शुरू करते हैं भैया. बेसिक पहले आपकी कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ बेसिकली वो स्कूल टू कॉलेज वाला ट्रांजिशन कैसे हुआ उसके बारे में जानते हुए. So, school mein, I had my study in Noida only. So, I was from Cambridge School, Noida. Maybe Animesh has an idea about that school. So 12th तक मैंने वहीं से करा and I was a good student in school, but uh, like everybody's aim, I also wanted to crack IIT or get into some good NIT, but I could not. So I gave other examinations also, and one of them being KIT. So पहले तो मैं consider कर नहीं रहा था कि KIT में जाना है ये वो कुछ उस टाइम पे it was not famous, right? Not that much famous what it is now. So कोई प्लान नहीं था ऐसा सडन जाके बस एग्जाम एग्जाम दे दिया. एग्जाम में रैंक भी अच्छा आ गया. आई गॉट अराउंड 600 रैंक. सो then my family over there, so some of my relatives are in West Bengal and Odisha also. So they said that that college is quite famous in that area. So I thought that why should not I give a try to it. Like I was getting computer science there, but in other colleges I was not getting computer science. I was getting some other branches. So I thought that computer science is going to get a boom in recent period and in the coming period. So if I want to do engineering, I should do in computer science domain only. So वहाँ से फिर मैंने किट ज्वाइन कर लिया. मैं इससे पहले मैं किट से पहले स्कूल के टाइम में फिटजी भी ज्वाइन करता था. फिटजी भी गया था, फिटजी नोएडा. Animesh is laughing. I think he has been also there. So फिटजी काफी अच्छा से I got really benefited. Then kit join करा like you guys only. I was also there. कॉलेज लाइफ काफी अच्छा था, काफी बंक वंक मारते थे. मतलब मैं तो फर्स्ट ईयर के बाद ज्यादा क्लासेस गया ही नहीं हूँ. तो आई मीन मैं उनमें से था जो बंक करवाते थे. सो लाइक नहीं जाना कॉलेज, क्या करना है, खुद से पढ़ लेंगे ये वो. एंड आई यूज टू बिलीव इन माई सेल्फ ओनली. सो आई यूज टू बिलीव दैट टीचर पढ़ा रहा है, इट्स ओके, बट इफ आई डू द स्टडी माई सेल्फ देन आई विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट. सो सारा स्टडी मैं खुद ही करता था. तो मैं उन बच्चों में था जो काफी ज्यादा घूमते थे, इधर उधर मस्ती करते थे एंड देन वन ऑफ द हाई स्कोरर भी रहते थे. सो आई वाज इन दैट फेज, आई वाज इन दैट ग्रुप. सो वैसा था कि देन इन द थर्ड ईयर ओनली फ्रॉम द सेकंड हाफ मुझे इंटर्नशिप मिल गया था बैंगलोर बेस्ड कंपनी में. एंड थर्ड ईयर के सेकंड हाफ से ही काफ़ी ज़्यादा कट हो गया था मैं कॉलेज से. सो काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप वगैरह में ध्यान देने लगा. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम था. उसके बाद फोर्थ ईयर में आई वेंट फॉर अ ब्रेक, मतलब जो समर वेकेशन था. एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम समर वेकेशन on 16th of July I got placed in on 14th of July I got placed in High Radius, and then on 16th I had to go to Hyderabad for internship. तो थर्ड ईयर के बाद मेरा आई हैव नो कॉलेज लाइफ. सब मेरी कॉलेज लाइफ थर्ड ईयर तक ही थी. ओके सो दैट भैया. वाज इट. आपने हाई रेडियस में भी इंटर्नशिप की है, तो वहाँ पे इंटर्नशिप का मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे आपने मतलब आप प्रिपेयर किए थे उसके लिए?
सो हाई रेडियस के बारे में तो अभी सब जानते ही हैं कि केटन हाई रेडियस का काफी ज्यादा अच्छा टाई अप हो गया है। तो it was I think second or third company to come during our time in 2000 for 2019 batch. तो उसने एक साथ around it took around 94 student at a time, and after that also it took another 14 or 20 students. तो 94 में मैं भी था, so I was placed as a software engineer, software as a associate software engineer 1. सो वहाँ पे गया मैं, जावा वावा करवाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे 1 मंथ की, जो काफी एग्जॉस्टिव था। आई मीन काफी ज्यादा इन डेप्थ ट्रेनिंग होती है वहाँ पे हाई रेडियस में, ट्रेनिंग काफी अच्छी होती है हाई रेडियस की। तो वहीं पे हम लोग वी यूज्ड टू सिट देयर फ्रॉम 9 AM to 5 PM इन द इवनिंग, एंड डिफरेंट टीचर्स आते थे, डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते थे, एंड वो ट्रेनिंग वगैरह देते थे। ट्रेनिंग काफी अच्छी थी। इनफैक्ट मैं जावा में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। मेरा प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज जो मैं यूज़ करता था वो C++ एंड पाइथन था। सो आई गॉट टू लर्न देयर जावा, सर्वलेट, JSP और उससे रिलेटेड जितना भी वेब डिज़ाइनिंग वगैरह सब सीख गया मैं वहाँ पे 1 महीने के अंदर। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम काफी अच्छा था। देन आफ्टर दैट दे वर एक्सपेक्टिंग सम मशीन लर्निंग इंटर्न्स, सम डेटा साइंस इंटर्न्स फ्रॉम दैट ग्रुप। तो वहाँ पे दे टुक अ टेस्ट, एंड देन इंटरव्यू। तो टेस्ट क्लियर हो गया, देन इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, एंड फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू आई गॉट इनटू द डेटा साइंस टीम। तो फिर वहाँ पे डेटा साइंस इंटर्नशिप करा मैंने 1 ईयर के लिए। वहां पे तुम्हें ऐसा एक सिचुएशन था जहाँ पे तुम प्रोजेक्ट भी मिल रहा है तुम्हें, तुम ऑफिस से भी काम सीख रहे हो, तुम आसपास के लोगों से भी काम सीख रहे हो, एंड देन यू कैन स्टडी ऑन योर ओन ऑल्सो, वॉट एवर यू लाइक यू कैन स्टडी देयर, सो यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम इन दैट इंटर्नशिप। हाई रेडियस का जो इंटर्नशिप होता है तो उसमें आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो वही मैंने भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स लिए, एंड देयर ऑल्सो वी हैड सम टीममेट्स. So Kiran was one of them, Divyam was one of them. So I used to uh, go to them and ask for other projects also. और वहाँ पे वो लोग मुझे प्रोजेक्ट देते थे अपने, जो रिसर्च वो लोग कर रहे हैं, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट टू लर्न टू मेनी थिंग्स. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम that they were part of the same team in which I was. तो ओके। ऐसा था इंटर्नशिप. अभी एक्चुअली मैं जैसे 6th सेम में हूँ, तो सेम सिनेरियो है। अभी हाई रेडियस का मतलब पहला एप्लीकेशन आया हुआ है, तो राइट. उसी मतलब अभी जो मेन डिस्कशन जो रह रहा है बच्चों के बीच में वो यही है कि जो मतलब हर कोई डिस्कस कर रहा है कि हाई रेडियस काफी ज्यादा काम कराता है, तो उस वजह से टाइम नहीं मिलता है बेसिकली प्रिपरेशन का। तो एंड आपका भी मतलब उधर जैसे इंटर्नशिप था, जैसे आपने बताया कि काफी हेक्टिक ट्रेनिंग थी, उसके बाद इंटर्नशिप था, तो फिर वो कैसे उसके बाद आपने जैसे फिर प्लेसमेंट भी निकाला मतलब उसमें जेडिस में, तो फिर वो प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया उस इंटर्नशिप्स के साथ? सो ओके, सो हाई रेडियस में दो टाइप के ग्रुप है, डेटा साइंस, नॉन डेटा साइंस. सो नॉन डेटा साइंस एक्चुअली छोटा सा डिपार्टमेंट है हाई रेडियस के अंदर, विद इन हाई रेडियस. तो उसमें एक्चुअली देयर इज नॉट मच वर्क, ज्यादा काम है नहीं है वो, मतलब एक ही दो सोल्यूशंस हैं जिन पे जो डिफरेंट क्लाइंट्स को बेच रहे होते हैं वो लोग. और अभी तो जब से मैंने छोड़ा वो, तब से तो काफी ज्यादा ग्रोथ है डेटा साइंस टीम की वहाँ पे. अभी तो काफी ज्यादा नई नई चीजें कर रहे हैं वो, जो पता चला है मुझे, पहले पता होता मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ. तो ऐसा होता था पहले हमारे टाइम में कि वी यूज्ड टू फिनिश द वर्क इन 3 to 4 hours every day, and whatever rest of the time is left in that period we used to prepare for interviews and all. और टीम में ऐसा सिचुएशन था कि सभी लोग, एवरीबॉडी वाज फ्रॉम द सेम कॉलेज, तो एक दूसरे की हेल्प काफी ज्यादा करते थे. दैट you can read this, you can prepare this, you can go on that site and read about it. ये सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे इंटरव्यूज में, ये पढ़ लो वो पढ़ लो. तो टीम वाज वेरी हेल्पिंग देयर. तो वहाँ पे रहते रहते टीम के साथ ऐसा इन्वायरमेंट ही बन गया था कि everybody wanted to prepare for different companies. Some were preparing for product based company, some were preparing for consultancy companies. तो मैंने भी और मेरे साथ वाले जितने भी थे सबने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया. अच्छा भैया, तो फिर आपकी मतलब जर्नी कैसे रही हाई रेडियस से जेडएस अप्लाई करने का, कैसे सोचा?
हाई रेडियस से जीएस, ओके। सो हाई रेडियस में अब इतना ज़्यादा काम नहीं था तो उतना मज़ा नहीं आता था, एंड देयर इज ऑलवेज अ ग्रीड फॉर मनी, राइट? तो पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, एंड सिंस आई एम फ्रॉम नोएडा ओनली, so I thought कि if I'm working in Hyderabad, why can't I work in same company, work in any company which is in Gurgaon, which is nearer to my home, so that I can stay with my family. तो थोड़ा मतलब वैसा मेंटालिटी हो गया था मेरा कि आई शुड मूव टू नोएडा एंड लुक फॉर सम जॉब देयर। तो हम लोगों ने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, एंड मैं और मेरे साथ 2-3 और बच्चे थे जिन्होंने कुछ कोर्सेज ले लिया था, जो आफ्टर फिनिशिंग दैट कोर्स दे आल्सो ऑफर प्लेसमेंट। तो ऐसा ही एक कोर्स था, अप्लाइड एआई कोर्स करके, सो दैट इज फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो उसमें हम लोगों ने एनरोल करा, एंड वी स्टार्टेड finishing it as soon as possible. So we had a target that so that course was of 1 year. So we had a target that 6 महीने में complete करना है, बाकी के 6 महीने इंटरव्यू देंगे और बाहर निकलेंगे। So ऐसा मेंटालिटी हो गया था। तो हम लोगों ने प्रिपेयर करना चालू करा, कोर्सेज खत्म होने लगे, 70-75% कोर्सेज खत्म हो गए। टिल देन यू हैड अ ग्रेट नॉलेज, मतलब उस कोर्स से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर लिया था हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, जो विच वॉज सफिशिएंट टू क्रैक एनी मशीन लर्निंग इंटरव्यू। अगर मतलब इफ यू आर नॉट गोइंग टू गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, बाकी सारी कंपनीज के लिए दैट वाज सफिशिएंट। तो उतना नॉलेज आ चुका था हमें तब तक। तो फिर क्या हुआ कि एक ऐसे ही हम लोगों ने जीएस के पोर्टल पे फॉर्म भर दिया, और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें फोन भी करेंगे, मैं तो ऐसे ही भर दिया था। तो एवरी ईयर हाई रेडियस होस्ट अ पार्टी, ठीक है, एनुअल पार्टी होती है वो। तो उसमें हम लोग गए, सब लोग घर आए 4-5 बजे तक, एंड 4-5 बजे तक घर आए तो उनका फोन आ गया कि देयर इज अ टेस्ट, you just give that test, you have to submit in 2 days, after that we will forward it from there, तो we take it forward from there। तो ऐसा हुआ, तो क्या हुआ कि अब मन था नहीं कि पार्टी से आए हैं अभी क्यों करेंगे, ये करेंगे। तो ड्यूरिंग माई लर्निंग पीरियड आई had created a ML pipeline for classification problems, जिसमें you just give the raw data and you will get the output results directly। तो ऐसा मैंने एक पाइपलाइन बनाया था ड्यूरिंग माय लर्निंग पीरियड, इंटर्नशिप के टाइम में। तो मैंने डायरेक्ट उनका डेटा उठाया, जो भी उन्होंने दिया, इस पाइपलाइन से भेजा, रिजल्ट आया, वो सबमिट कर दिया, ठीक है। तो लकीली इट गॉट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड, वो वाला सोल्यूशन। उसके बाद they called me and they said that you have to be there in Bangalore to for the next rounds, तो you have to prepare some PPTs and all। तो पीपीटी वगैरह प्रिपेयर करके गए सोल्यूशन का, एंड बैंगलोर गए इंटरव्यू देने। वहाँ पे 2 राउंड्स हुए, तो वहाँ पे 2 राउंड दिए, एक के बाद एक निकल गया लकीली। एंड थर्ड राउंड देन जूम पे हुआ एक सीनियर मेंबर के साथ वहाँ पे, एंड he was very happy with me, so I got selected। So that was the overall journey Okay, from high radius to CS। so if you could more elaborate about this ZS, like कैसे कंपनी है ये, मतलब सुना तो बहुत है कि प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह की पोजीशन में काफी यूनिक काम होता है ZS का, so क्या scenario है इसका? सो जीएस जो है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, दो उसके इवन इवन दो उसके प्रोडक्ट्स हैं अपने जो बेचते हैं वो बहुत सारे क्लाइंट्स को, लेकिन एक्चुअली में वो एक कंसल्टेंसी फर्म है, ये तो पता ही है। सो जितने भी ये बड़े बड़े कंसल्टेंसी फर्म है उनमें से जीएस भी एक आता है, जैसे मैकेंजी हो गया तुम्हारा, बेन हो गया। तो तो जीएस भी वैसा ही कुछ, मतलब काफी फेमस है इन कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक यूनिक चीज है कि यहाँ पे हायरार्की बहुत ही कम, मतलब लेवल्स बहुत ही कम है ग्रो करने के लिए। तो लेवल्स बहुत ही कम है, तो यहाँ पे होता क्या है, तुम किसी भी फील्ड में एसोसिएट से शुरू करते हो, देन एसोसिएट कंसल्टेंट बनते हो, देन कंसल्टेंट बनते हो, देन मैनेजर बनते हो। और ये सारे ही रोल्स जो है यहाँ पे, सिंस वी आर नॉट हैंडलिंग आर ओन प्रोडक्ट, वी आर वर्किंग फॉर सम अदर कंपनी, सम अदर क्लाइंट्स, तो ज्यादातर रोल जो है वो क्लाइंट फेसिंग होते हैं। सो इफ आई से दैट आफ्टर 3 to 4 years
जीएस में हैंड्स ऑन काफी कम होगा एंड क्लाइंट फेसिंग रोल्स जो होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अचानक से। तुम्हें मतलब ज्यादातर फोन वोन पे ही बैठना पड़ेगा, तुम बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रहे होगे, बहुत बड़े 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 आर्किटेक्चर्स बना रहे होगे प्रोडक्ट के लिए, क्लाइंट के लिए। सो वैसा काम ज्यादा होता है जीएस में। एंड मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं हूँ डेटा साइंटिस्ट में, डेटा साइंटिस्ट हूँ मैं अभी, एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट। तो उसमें यू नो कि हम लोग वही डेटा आता है हमारे पास क्लाइंट से, बहुत सारे क्लाइंट्स के डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब मैंने जो अभी अभी प्रोजेक्ट्स करे हैं 2-3, उसमें ऐसी चीजें हैं जैसे मतलब साइट सिलेक्शन, हेल्थ केयर, देन ड्रग डिस्कवरी, देन इनसाइड सेल्स टीम जो होता है डिफरेंट कंपनीज का, हम लोग उनके लिए काम करते हैं। ओके सो ये मतलब जो प्रिपरेशन है जीएस के लिए वो कैसी थी? मतलब वो नॉर्मल जैसे डीएस एंड एल्गो वो सभी पढ़ना होता है या फिर और एक्स्ट्रा क्या आप प्रिपेयर करते हैं इसके लिए? सो मेरा मेरा जो प्रिपरेशन मेथड था कि मैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग तो पढ़ ही रहा था बिकॉज आई वाज द पार्ट ऑफ डेटा साइंस टीम। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो यूज्ड टू लर्न कोडिंग। तो कोडिंग मेरा काफी स्ट्रांग रहा है पहले से ही। कॉलेज टाइम में भी मेरी कोडिंग वोडिंग वाज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स जो मेरे पास है। तो मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इनफैक्ट मैंने अपने ईयर में किसी एग्जाम में डेटा स्ट्रक्चर के टॉप भी मारा था। तो तो मेरा पहले से ही मोटिव था कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है एंड जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम काफी ज्यादा यूज होता हो वैसी कंपनी में जाना है। बट हाईरेट्स में बैठे अब सेलेक्ट हो गए, पर वो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी बट वहाँ पे काम मुझे वैसा मिला नहीं मनपसंद का। तो प्रिपरेशन मेरी पूरी थी कि मैं दोनों वे में जा सकता था, दोनों रास्ते में जा सकता, इवन फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक ऐसी कंपनी में जा सकता था जो एनालिटिक्स बेस्ड है, जो सिर्फ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में काम करता है, क्योंकि मेरे पास दोनों नॉलेज सफिशिएंट था क्रैक वैक करने के लिए इंटरव्यूज। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर हम डेटा साइंस में घुसे हैं एंड अभी तो पता ही है कितना ज्यादा बूम कर रहा है ये इंडस्ट्री डेटा साइंस, तो इसी में रहना है, इसी में स्टिक करना है। कोडिंग को थोड़ा साइड करते हैं एंड डेटा साइंस में डोमेन में थोड़ा डीप एक्सपर्टाइज लाते हैं। तो मैं कोडिंग को साइड करा और डेटा साइंस में ही डीप घुसता गया और बहुत सारी चीजें बढ़ता गया। और ऐसे ही फिर मैंने बताया जैसे मेरे सीनियर्स थे बहुत सारे हाई रेडियस में, तो उनके साथ भी मैं मिला, उनसे पूछा कि कैसे प्रिपेयर करना है। वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे, डिफरेंट मटेरियल्स शेयर कर देते थे जिससे मैं पढ़ के मतलब इंटरव्यू के लिए रेडी हो पाऊँ। तो ऐसे ही प्रिपेयर करा था मैंने, मतलब डेटा साइंस पे ज़्यादा ध्यान दिया था एंड कोडिंग, ऐसा नहीं है कि आई लेफ्ट द कोडिंग एट ऑल, मैं कोडिंग भी साइड में करता रहता था ताकि, क्योंकि इफ यू गो टू बिग कंपनीज लाइक Amazon and Microsoft, even for the data science position, uh, you you need to have deep knowledge in data structure and algorithm. Even if you have the data science knowledge and you don't have expertise in coding, you won't be selected for those companies. So starting से ही मैंने काफी कोडिंग वोडिंग पे काफी ध्यान दिया है, बट एक सर्टेन पीरियड के लिए उसको छोड़ के डोमेन एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा था। Okay, so apart from like these too much coding focused jobs, मतलब कुछ जैसे जो कंसल्टेंसी एंड जो प्रोडक्ट मैनेजर टाइप की जॉब्स भी होती हैं, so how to prepare for them, like उसका अगर कुछ आइडिया दे सकें आप तो, एंड उनको प्रोडक्ट मतलब कहाँ मैनेजर, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं? लाइक सो एक बुक है हाउ टू क्रैक प्रोडक्ट मैनेजर इंटरव्यू, जैसे एक हाउ टू हाउ क्रैक टू क्रैक प्रोडक्ट कोडिंग मैनेजर। इंटरव्यू। आई डोंट थिंक कि तुम स्टार्ट ही प्रोडक्ट मैनेजर से करते हो, तुम ग्रेजुअली प्रोडक्ट मैनेजर तक पहुंचते हो। पर आई डोंट थिंक कोई भी कंपनी एक
एक फ्रेशर को सीधा प्रोडक्ट मैनेजर बनाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए तुम्हें पहले प्रोडक्ट के डिटेल्स पता होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे चलता है, कैसे बिकता है, कैसे काम करता है, कैसे उसका लाइफ साइकिल है, ये सब पता होना चाहिए। एंड ये सब एक्सपीरियंस से ज्यादा पता चलता है रादर देन रीडिंग। ये वो चीज नहीं है कि तुमने बस पढ़ाई करी और तुम सीधा चले गए कंपनी के पास कि मैंने ये बुक पढ़ ली है भाई, अब मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बना दो। ऐसा नहीं होता है। सो ये सब चीजें ग्रेजुअली आती हैं, जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस्ड होगे। तो पहले तुम प्रोडक्ट के अंदर काम करोगे किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, फिर तुम ओवरऑल प्रोडक्ट देखोगे कि कैसे काम करेगा, फिर ओवरऑल प्रोडक्ट को तुम बिल्डिंग से लेके, मतलब प्रोडक्ट बिल्डिंग से लेके प्रोडक्ट प्रोडक्शनलाइज करोगे। तो ये सब चीजें जैसे जैसे तुम्हें पूरा नॉलेज आता जाएगा कि कैसे एक प्रोडक्ट को फ्रॉम स्क्रैच से उठा के क्लाइंट तक बेचना है, तब तब तक मतलब तुम्हें टाइम लगेगा प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए। तो एक प्रोडक्ट मैनेजर को ये सब सब कुछ आना चाहिए, एक छोटी से छोटी प्रोडक्ट की डिटेल से लेके एक प्रोडक्ट कैसे मार्केट में पहुंचाना है। तो ये काफी अर्ली स्टेज है प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए, अगर मतलब कोई सोच रहा है कि फ्रेशर से ही डायरेक्ट, अनटिल अनलेस वो प्रोडिजी हो फिर तो कुछ भी कर सकता है। Okay, so what was your preparation strategy like जब आप कॉलेज में थे एंड जब इंटर्नशिप वगैरह लगनी थी, तो फिर उस वक्त की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहती थी आपकी? अच्छा, so during my second year, so I was only focusing on data structure and algorithm and C++ coding in my entire college life. Okay, so I thought कि कोई भी कंपनी आएगा, उन्हें कोई भी रोल चाहिए, बट देयर प्राइमरी फोकस विल बी ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सो आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू any other subject apart from data structure algorithm and C++ and Java or any OOP based language. So I chose C++ there. तो मैंने काफी स्टार्टिंग से ही मैं क्लियर था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, बस ये करना है और कुछ नहीं। एंड फॉर द अदर सब्जेक्ट, इंटरव्यूज में और भी पूछते हैं सब्जेक्ट, डीबीएमएस, ऊप्स, डीबीएमएस, कोआ एंड एल्गोरिथम्स वगैरह, जो बाकी के सब्जेक्ट है, ओएस वगैरह। सो उन सब के लिए आई वाज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन। मैं सीधा गीक्स फॉर गीक्स गया एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आई जस्ट स्किम थ्रू। तो वो सारा बस पढ़ लिया मैंने डायरेक्ट वहां से, और आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इतना से हो जाएगा, बस कोडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। सो एक्चुअली में भी वही हुआ ही, और इसी के बेसिस पे दो चार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो गया था। बट इसके अलावा सेकेंड ईयर में फिर मैंने देखा कि इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ये मशीन लर्निंग वगैरह का काफी ज्यादा बूम हो रहा है अचानक से। तो मैंने सोचा कि अभी जब तक हम लोग कॉलेज से पास आउट होंगे, इसका काफी ज्यादा डिमांड होगा। बट एट दैट टाइम मशीन लर्निंग में फ्रेशर्स लेते नहीं थे, दे ओनली यूज्ड टू टेक पीएचडी और एमएस स्टूडेंट्स। तो मुझे डाउट भी था कि अगर मैं प्रिपेयर करूँ भी तो लेंगे कि नहीं लेंगे। सो आई हैड दोज डाउट्स इन माय माइंड। पर मैंने सोचा नहीं, प्रिपेयर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज इट। तो आई केम अक्रॉस दैट वेरी फेमस कोर्स फ्रॉम एंड्रयू एनजी Andrew फ्रॉम NG, स्टैनफोर्ड। yeah, yeah. हाँ, सो आई read that course, I studied that course, और मुझे वो कोर्स काफी अच्छा लगा, क्योंकि आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स। और अगर वो कोर्स देखोगे तुम तो उसमें काफी ज्यादा मैथमेटिक्स है इन डिटेल। तो मुझे काफी ज्यादा वो कोर्स पसंद आया, और मैंने उसके चक्कर में 4-5 और मशीन लर्निंग के कोर्सेज कर दिए सेकंड ईयर में। सो सेकंड ईयर मुझे काफी मजा आने लगा इसका। देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट इन थर्ड ईयर एंड इन फोर्थ ईयर यू हैव टू डू सम माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट। तो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट कोडिंग पे क्या ही होगा, सब मतलब ऐसी चीजें करते हैं, फेशियल रिकग्निशन ये वो। तो अभी तो फेशियल रिकग्निशन मेरे लिए मतलब बहुत छोटी चीजें हैं ये सब, मतलब रेडिली मिल जाएगा तुम्हें, अनटिल अनलेस तुम बहुत बड़ी चीज बना रहे हो उसका। तो ये सब तो रेडीली मिल जाता, बट उस टाइम पे मैंने सोचा कि अगर मैंने ये खुद से बना दिया, खुद से कर लिया इसका कोड वोड, तो मजा आ जाएगा। तो फिर तो मैं बन गया मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, और उसी टाइम पे फिर आईओटी आईटी भी काफी फेमस हो गया। तो आई थॉट कि नहीं यार, मशीन लर्निंग से फर्क नहीं पड़ता, आईओटी भी लाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, आईओटी तो आना ही चाहिए। तो आई वाज गेटिंग डिविएटेड फ्रॉम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो काफी ज्यादा मतलब एक पे स्टिक ही नहीं कर रहा था मैं। तो मैंने सोचा नहीं, आईओटी भी लेके आएंगे। तो फिर एंड्रयू एनजी के कोर्स में ही मैंने कहीं उसके बहुत सारे वीडियोस एंड जर्नल्स वगैरह आते थे, मैं
उसको पढ़ता था, तो उसने अपने चाइना में बाइडू करके एक कंपनी है, वहां पे उन्होंने एक फेशियल रिकग्निशन बेस्ड स्मार्ट डोर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, जिसमें एक ऑफिस के सारे एम्प्लॉय विद देयर फेशियल रिकग्निशन अंदर बाहर जा सकते हैं। तो आई थॉट यही बनाना है भाई, अब तो यही बनाना है जो होगा। तो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तो बना ही दिया था पहले ही, तो उसमें अब IoT ऐड करके रास्पबेरी पाई वगैरह लेके आए कि अब तो भाई करना ही है। एंड देन उससे फेशियल रिकग्निशन से मैंने स्मार्ट डोर वाला जोड़ दिया, एंड वो प्रोजेक्ट बना। और उसी को हम लोगों ने थर्ड माइनर प्रोजेक्ट में भी दिखाया, मेजर में भी दिखाया। तो उधर मेरा फिर जो वो कर्व था मशीन लर्निंग का, वो वहाँ पे मेरा इम्प्रूव हुआ। तो जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, तो माय नॉलेज बेस रियली एक्सपैंडेड। तो वहाँ पे फिर मुझे अच्छा लगने लगा काफी ये सब चीजें, और इंटरेस्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मशीन लर्निंग में जाना है कुछ भी करके। तो धीरे धीरे फिर लक भी साथ था, हाइब्रिड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के गए थे, वहाँ सेलेक्ट हो गए मशीन लर्निंग में, और फिर फाइनली एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो वैसा था। Along with everything, you pursued the coding like practice हाँ, always. या वो कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि इवन इन द डेटा साइंस, इवन इफ यू डू द डेटा साइंस इन एनी फील्ड which involves building any product, तो उसमें तुम्हें कोडिंग आना ही चाहिए, और तुम्हें सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल पता होना ही चाहिए, वरना वरना कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आई नेवर लेफ्ट कोडिंग पार्ट। Wow, that's great. I myself also aspire to be a data scientist rather than a coder or a software developer. So it was a great insight from you. So thank you, Bhaiya, for giving your precious time and giving us insight about your journey till ZS. So ऑल ओके। सो लिसनर्स, आप प्लीज अनिमेश और अभिनव का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि ये गाइस काफी ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये लोग फॉलो कर रहे हैं फॉर देयर टाइम, ताकि आए वो यूट्यूब पे, एंड दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर देयर व्यूअर्स। उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा, वो उनका टाइम ही जा रहा है, what they can what they can spend somewhere else in studying or in preparing for the exams, but they are putting these precious hours for you. So इतना तो बनता है, like and subscribe please. thank you, Yeah. Bhaiya. Thank you, and Thank you, Via. thank you for watching us. We'll make sure to bring such content more in very future. And Merry Christmas and Happy New Year in advance, everyone. Yeah, Merry Christmas and Happy New Year everyone, and thanks for having me here, Animesh and Avinav, and Thank you, giving Bhaiya. me an Our pleasure. opportunity to be in your journey, and best of luck for your future endeavors. Thank you, Bhaiya. Thank you. So pleasure.